Good afternoon. My name is Abhignya, and I'm a PhD scholar working on Russian literature. And this afternoon, I am again interested with the special duty of introducing all of you to the session, to the speakers, and to the moderator. This session, as you all might already know, is called Authors' Lives, Their World Inside Our World, wherein these 5 very accomplished public figures shall share with us what it takes to be responsible citizens, career-oriented people, deeply driven persons, social change makers, and good human beings. I'd also request the panelists to please take their seats on stage, as I'll introduce them shortly. We are beyond pleased to host Dr. Hira Lal, IAS, who's an engineer by education. He's then acquired a master's in public administration from the US and eventually a PhD in the domain of ICT for achieving the aim of good governance. He has served in several important positions in the government of UP in the sectors of culture, food, labor, security, etc., and as a district manager for a year. His deep love for life, empathy for the underprivileged, and zest for social service has led him to be a figure of inspiration that the Indian public can look up to. His book, Dynamic DM, was recently published and was jointly written by Kumud Verma, published by Prabhat Publications. It has proved to be a great success and is especially popular amongst the rural youth. We are also graced with the charming presence of Ajay Chaudhary ji, IPS officer since 1996. He has served as Joint Commissioner of Police, New Delhi Range, and is currently posted as OST in the government of Mizoram. He has greatly contributed to the maintenance of communal harmony, in interreligious conflict-prone areas, militant zones in the Tirap region of Assam, especially. He is amongst the very few approachable officials who has strived throughout his career to bridge the trust gap between the public and the police through Nukkad meetings, the establishment of Public Police Library Counseling Center. Moreover, Chaudhary sir has translated Hemingway's beautiful works, The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, into Hindi. Recently, he has successfully formulated the text of his first novel, Son of Ganga, which shall be published soon. We are also immensely honored to host Ms. Maitri Devi Sisodia, who is an engineer by training. I don't see her here, but I am assuming she'll arrive shortly. Okay, sorry. We are hosting Maitri ma'am too. She is an engineer by training. She spent a while working at a reputed national firm before becoming the deputy collector of the Gujarat government, for she wished to be a change maker in the true sense of the word. Since then, she has had a great impact in the domain of civil service, having worked with dignitaries such as APJ Abdul Kalam sir. Ms. Sisodia is also a writer known for her work contemporary Chirharan and is currently working on a poetry collection. Aditya Kant ji, also amongst us today, is a senior journalist with about 25 years of experience in the field. He has worked with the country's leading English publications in Delhi, Chandigarh, Ahmedabad, Jaipur, and Shimla. At present, he works as the senior assistant editor with the Times of India in Chandigarh. His debut novel, High on Kasol, is inspired from the real life and has been widely acclaimed for bringing to the fore the burning issues of environmental degradation and drug abuse amongst the youth. He is working on the prequel to Kasol at the moment. Nirmal Yadav ji, the moderator of the session, is a leading Hindi journalist and columnist. He has been active in the field for over 25 years now and has worked with the best of all media houses so far. He started as a chief reporter in a Hindi daily at NCR and then has worked at PTI. Nirmal ji's brand of journalism is a mix of political reportage and environmental activism. Now, without further ado, let us begin the session. Over to you, Nirmal ji. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। ब्रज की धरती से गुजरात द्वारकाधीश की धरती पर हम लोग यहाँ हैं और कल से इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, मैं शुरुआत से ही हूँ यहाँ पर और साहित्य का जो सरोवर जिसमें हम सराबोर हैं कल से ही। आज मैं अपनी 2 बातें यहाँ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 48 घंटे होने को आए। साहित्य के तमाम सम्मेलन हम लोगों ने देखे, मैं देखता रहता हूँ बतौर पत्रकार।
देश के तमाम इलाकों में हम जाते हैं। इस सम्मेलन ने देश और काल की सीमाओं को तोड़ा है। कल जिस तरह से शाम को कवि सम्मेलन के समय ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन और आयरलैंड की एक महिला पत्रकार कवयित्री ने अपनी कविताओं के माध्यम से इस देश को हमें समझाया, हमें बताया, उससे लगा कि ये जो साहित्य का सम्मेलन है वो सच में अपनी सीमाओं को जहाँ ले जाना चाहिए, जो सीमाओं में बंधना नहीं चाहिए, वहाँ ले जा रहा है। मुझे लगता है कि एक ये कारवां है जो बना है और आगे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है अपनी मंजिल की ओर। दूसरी बात, यहाँ जो इस पूरा साहित्यकारों का एक जो समागम है, तरह तरह के लोग, विभिन्न विधाओं में काम करने वाले लोग, तमाम सेक्टर में काम करने वाले लोग, वो साहित्य की भी सेवा किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अनूठी बात है, क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन में कुछ इस तरह मशगूल हैं कि साहित्य या जिसको कहें कि जीवन, वो एक मिसिंग पॉइंट हो जाता है, माइनस हो जाता है और हम उसको महसूस कर पाने से महरूम हो जाते हैं। यहाँ वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि ये सेशन ऑथर्स लाइव्स, एक साहित्यकार का जीवन, उसके साहित्य के अलावा, उसके काम के अलावा क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे इस सेशन में जो लोग हमारे साथ में हैं, एक बात और मैं महसूस कर रहा था कि मैं इस पूरा ये जो आयोजन है इसमें मैं कहाँ फिट हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खाँटी तौर पर पत्रकार हूँ। मैंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई कहानी नहीं लिखी, कोई कविता नहीं लिखी, तो मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ। कल और आज में ये समझ में आया कि मैं साहित्य की रचना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साहित्य को समझ सकता हूँ। साहित्य को समझते हुए इतना तो तय है कि साहित्य जो सृजन करता है वही प्रकृति के सबसे करीब होता है, और इस पूरे सम्मेलन की जो थीम है वो प्रकृति को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हमारे बीच में जो लोग हैं सबका परिचय हो चुका है। एक दो बातें जो शायद उस परिचय से छूट रही थीं वो मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से इंजीनियर हैं और सिविल सर्वेंट भी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर हीरालाल जी सीनियर IAS ऑफिसर हैं, IPS अजय चौधरी जी हैं, मैत्री जी हैं, वो गुजरात सिविल सर्विस से हैं, और इन सब के बीच में हम दो पत्रकार बैठे हुए हैं, एक आदित्य जी हैं। तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति की हम लोग को जो प्राथमिकता दी गई है, तो मैत्री जी से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैम, आप सिविल सर्वेंट भी हैं और साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, सामंजस्य कायम करना, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होती है, मैं देखता हूँ, मैं सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों का बड़ा बातचीत का एक सिलसिला चलता रहता है, तो समय का बड़ा अभाव होता है। तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाते हैं और कितना मुश्किल होता है इन सब के बीच अपने लिए, अपने जीवन में कुछ अपना समय निकाल पाना? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। बहुत ही सौभाग्य महसूस कर रही हूँ कि इतनी डिस्टिंग्विश्ड पैनल में मेरा उनके साथ डायस शेयर किया जा रहा है, और आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा, सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ समय निकालना, तो हर एक जॉब की तरह हमारी जॉब में भी चैलेंजेस रहते हैं। जैसे आपने कहा, कुछ समय ऐसे आते हैं जब आप, बिकॉज द ड्यूटी कॉल्स, एट दैट टाइम यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। कभी डिज़ास्टर हुआ या जब भी इलेक्शन का समय है, तो हमें पता ही है कि हम अब ढल जाते हैं एक तरीके से। इतने समय से आप जब सेवा में हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये समय ऐसे है जहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। बट उसके साथ साथ जॉब इतना सारा एक्सपोजर देती है, जैसे ग्रास रूट के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इतनी दिल को छू जाने वाली स्टोरीज़ आपको जस्ट बिकॉज यू आर ऑन द फील्ड मिलती है कि आई थिंक मेरे लिए तो मेरा क्रिएटिव क्वोशंट सर्विसेज में आके बढ़ा ही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और समय निकालने की बात अगर की जाए तो बहुत ही सिंपल है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। थोड़ा आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। टू डू लिस्ट रोज़ मैं बनाती हूँ, और वीक में एटलीस्ट 2 घंटे ट्राई करती हूँ कि कोई क्रिएटिव एक्सरसाइज या कुछ लिखना करूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। बट हाँ जी, जब
कुछ समय ऐसे होते हैं जब आप नहीं निकाल पाते हैं, बट देन इट इज़ थेराप्यूटिक। जब आप वो समय निकालते हैं अपने आप के लिए, आपको खुद समझ में नहीं होता है कि आपको इतना आगे का स्ट्रेस था, वो सब रिलीज़ हो जाता है। तो लिटरेचर इज़ वेरी थेराप्यूटिक एज वेल एज़ कैथार्टिक। जब आपकी पेन कलम आपकी जो पेपर पे आप उतारते हैं, उससे काफ़ी मतलब क्लोजर भी मिलता है, और मतलब एक पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल एनरिचमेंट, आप जो भी कह लीजिए, उसका भी एक माध्यम है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग इसका मीनिंग है, इसको एक चीज़ से मैं एट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी। So far I have been able to take time and keep giving my time to literature as well. आदित्य जी, ये इंजीनियर लोग हैं, ये कलम के साथ भी इंजीनियरिंग करते हैं, आप पत्रकार हैं, तो एक पत्रकार और साहित्यकार, हालांकि बहुत दूरी नहीं है, शब्दों को पिरोना और उनको एक आकार देना, सिर्फ इतना एक जिसको कहें कि बाजीगरी है। तो आप इस चीज़ को, इस कला को जिसको हम इंजीनियरिंग कह रहे हैं, आप कैसे उसको कर पाते हैं? थैंक यू निर्मल जी, आई एम ऑडिबल। पहले मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी कि इतना पेशेंटली इतने सेशंस के बाद भी ये लोग हमें सुन रहे हैं, इतने इंटरेस्टिंग सेशंस के बाद। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक एक चीज़ जो शायद हम बाहर भी जो इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे थे, हम कह रहे थे ये देखने में या सुनने में बहुत ही सबके लिए बड़ा इजी लगता है कि जर्नलिस्ट है तो उसके लिए लिखना बड़ा आसान होगा। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक जो हम जर्नलिज्म करते हैं दैट इज़ लिटरेचर इन हरी, और जो फिक्शन राइटिंग करते हैं, आई थिंक जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जर्नलिज्म में हम बहुत प्रिसाइज होते हैं, वी आर स्टिकिंग टू फैक्ट्स, जो है वो हमें एज इट इज़ रिपोर्ट करना होता है। इंट्रो आपने देखे होंगे, स्टोरीज़ कितनी छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखनी होती हैं। बट फिक्शन में जब हम आते हैं तो सडनली हमें लगता है, मैं भी जब लिखना शुरू किया था मुझे यही लगा था कि जर्नलिस्ट हो तो आपके लिए लिखना बहुत आसान होगा। ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आपको मूव करते हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में वो चीज़ें एज इट इज़ कन्वे नहीं कर सकते हैं। तो उन सबको लिखते मैंने जब शुरू किया, बट आई रियलाइज कि I had to de-learn so many things which I had learnt as a journalist for about I think 25 years. क्योंकि आप न्यूज़ की तरह एक फिक्शन को नहीं लिख सकते। सुनानी आपने कहानी है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा एग्जेजरेट भी करना पड़ेगा, उसमें स्पाइस भी डालनी पड़ेगी, रीडर्स को बांधना भी पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक अपनी कहानी बना रहे हो। वो ऐसी कहानी नहीं है जो आपने कहीं देख ली और एज इट इज़ न्यूज़ के फॉर्म में रिपोर्ट कर दी। एक एक्सीडेंट हो गया आप उसको रिपोर्ट कर दोगे, बट एक कहानी है, उसको आपको वीव इन करके सारा का सारा सीन क्रिएट करके लिखना है। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैं शुरू में एंटिसिपेट नहीं कर पाया था जब मैंने लिखना शुरू किया। सो इसका एक रीज़न था कि मैंने शुरू में, मैं पहले भी ये बात कहता हूँ, 10-15 हज़ार वर्ड्स मैंने लिख लिए थे, एंड व्हेन आई रीरेड इट, और मैं एक दो अपने क्लोज जो मेरे क्रिटिक्स हैं, मेरे वाइफ हैं, मेरे एक दो दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ाया, और जो मुझे भी लगा वो लगा कि ये तो एक न्यूज़ स्टोरी लग रही है, तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए फिक्शन। तो मुझे फिर पूरा डीक्लटर करना पड़ा, मुझे डी लर्न करना पड़ा, और मैंने अपने आप को कॉन्शियसली एफर्ट्स किए उस प्रोसेस में जाने के जो एक ये फिक्शन राइटर का होता है, और एक कॉन्शियसली मैंने उसको ये इंश्योर किया कि न्यूज़ की तरह वो ना लगे। बट फिर उसके बाद फ्लो आता गया। तो मेरी स्ट्रगल शायद वो इन सब लोगों से थोड़ी सी अलग रही होगी, बट बीइंग ए जर्नलिस्ट आई थिंक आप थोड़ा ज़्यादा, कोई भी जर्नलिस्ट वो शायद उसको ज़्यादा समझ पाए, क्योंकि आप जिस चीज़ में घुसे हैं उससे निकल के लिखना और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के डिसोसिएट करके लिखना, वो मेरे लिए एक चैलेंज रहा है। इनफैक्ट मैं बाहर अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, मैंने आपसे एक ही बात कही कि मैं अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया कि स्टोरी तो कितनी भी लिखवा लीजिए मुझसे और किसी भी मूड और मिजाज की करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि एक कहानी लिख दो या कविता लिख दो या कोई लिटरेचर के लिए नॉवल लिख दो, वो अब तक मेरे अंदर से बात नहीं आई है। तो हीरा लाल जी, आपसे सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि हीरा लाल जी, मुझे लगता है कि शायद यहाँ जितने लोग हैं सब लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे। ये पेशे से या पढ़ाई से शुरुआत में इंजीनियर थे, इसके बाद ये जो है आईएएस भी हो गए और फिर पानी पर काम करने लगे और इस समय गांव पर काम कर रहे हैं। तो कहीं
लाइनें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। आपको ऐसा कब लगा कि आप लिख भी सकते हैं? देखिए, मुझे लोगों ने कहा कि लिख दो। इसकी कहानी बहुत सिंपल है कि मैं कलेक्टर था बांदा में, जो यहाँ डीसी बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रयोग कर रहा था। पानी पे प्रयोग किया, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया, पूरे देश में मुझे नाम मिला। चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे एक कलेक्टर की पूरे लोकसभा में तारीफ की, वो मैं था। मैं न्यूट्रिशन पे नीति आयोग ने मेरे मॉडल को पेज नंबर 73 पे लिखा। जेल 72 जेल हैं यूपी में, नंबर 1 का खिताब हमने जीता। इस तरह से हमने 20-22 प्रयोग किए। तो सारे पत्रकार लोग आ कहते थे साहब बताओ बताओ, कुछ लिटरेचर बना, कुछ बना दो कैसे। तो हम लोगों ने एक इनोवेटिव बांदा नाम से एक किताब, एक बुकलेट बनाई। बुकलेट बनाने के बाद लोगों ने कहा सब आप जब हट जाओगे तो बुकलेट ख़त्म हो जाएगी और आप भी 2 महीने बाद भूल जाओगे कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो किताब लिख दो। कुछ लोग तो वहीं के फिल्म बनाए थे जिसको मैं प्रमोट करा, कहीं इस पर फिल्म भी बना दो। तो अब मैं तो लिखना तो मतलब लिखना उखना मेरा 0 सन्नाटा था, मुझे कहने में कोई अफसोस। मैं प्रैक्टिशनर बहुत अच्छा हूँ क्या, जहाँ कोई फेल हो जाए मैं चैलेंज देके कहता हूँ मैं वो काम करके दिखा दूंगा, मेरा ये कॉन्फिडेंस है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिर क्या हुआ, मैंने लोगों ने कहा एक घोस्ट राइटर होता है, तो एक घोस्ट राइटर पकड़ा, पैसा दे दिया, वो भी पैसा लेके भाग गया, कुछ नहीं हुआ, वो घोस्ट हो गया। तो मैं फिर बहुत परेशान हुआ। मैंने देश के 20-25 राइटर को दिया तो कोई ये वो तो नहीं बजा। एक दिन मैं ये लिटरेरी फेस्टिवल टाइप के जहाँ लिटरेरी लिखा होता था तो मैंने उसमें पिंच किया, क्या मैं उनको तो इसमें ये भी फंस गए हमारे ये उमा शंकर जी। तो हमने जब इनको कहा कि भाई मुझे ये लिटरेरी, मैंने ये लिखने पढ़ने वाले घोस्ट राइटर की मैं तलाश में था, तो हमने कहा हमें लिखना है। तो उन्होंने ये हमसे टकराए और देखे मैं IAS अफसर था और यूपी का था, ये हो यूपी के हैं। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, और हमारे पास एक कुमुद वर्मा मैडम है जो लिखती हैं, और उन्होंने मुझे इनसे जोड़ दिया। खड़ी हो जाइए जरा, आपको तो सब जानते हैं, ये हमारी को ऑथर हैं मैडम। और उनके हस्बैंड साहब, आप भी खड़े हो जाइए, शर्माइए मत, हैं आप, है ना, आप श्री संजय वर्मा जी हैं, IIM में प्रोफेसर हैं, आप उनकी मैडम हैं। तो इन्होंने कुछ लिखा, उसकी फ्रेमिंग व्रेमिंग कर दी। तो जो बात आई है, चूंकि टोटल प्रैक्टिकल पे है सब कुछ मेरे दिमाग में, वो मुझे मज़ा नहीं आया। फ्रेम तो बन गया लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स मज़ा नहीं आया। फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो मैं लिखता कैसे था, मैं क्या करता था, 1-2 पेज लिखा, सुबह सबसे बढ़िया मूड होता है, 2-3 पेज लिख दिया उसी में, और उसके बाद मैंने व्हाट्सअप कर दिया ऑफिस में। जब मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचा तब तक मेरा स्टेनो क्या उसको टाइप करके रखता था। ऐसे धीरे दूसरा लिखा तो थोड़ा और मज़ा आया, तीसरा, क्योंकि सब मेरे दिमाग में था। और मैंने सबके पेपर कटिंग रखे थे, मेरे पास वीडियो थे, पेपर जहाँ कुछ भूलता था पेपर कटिंग से रिलेट करता था। तो इस तरह से फिर एक दिन तो मतलब धीरे धीरे ये रुचि इतनी अच्छी बनी कि एक दिन संडे का दिन था, 4 चैप्टर लिख दिया, उसी दिन ख़त्म कर दिया क्या। तो इसकी कहानी लिखने की इस तरह से बनी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ये किताब पहले हम लोगों ने हिंदी में लिखा है, और हिंदी में ये अब तक इसकी 7000 किताब बिक गई क्या। और मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता, हमारे यहाँ 2-4 IAS अफसरों ने लिखा है, सीनियर हैं, तो उनको मुझे बताया एक अफसर ने, उन्हीं के बीच का, कहीं 200 रुपया हम लोग बहुत IAS वाला धक्का देते हैं तब 200 किताब बिकी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक मेरे पास अगर 3000 कमेंट आए होंगे तो केवल एक निगेटिव कमेंट आया, वो भी हमारे IAS अफसर थे, और वो दुनिया को निगेटिव ही लिखते हैं। आज तक उन्होंने अपने ज़िंदगी में किसी को पॉजिटिव नहीं लिखा, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव ही है। अब कल हम लोगों ने इसका गुजराती वर्जन का लोकार्पण किया है, रिलीज किया है। अब हम अगले 2-3 महीना तक गुजराती बनेंगे, क्या बनेंगे, और गुजराती बन के इस किताब को यहाँ लोगों तक पहुँचाएंगे। क्यों, ये किताब एक बात बताती है, एडमिनिस्ट्रेशन में इस देश में 3 पोस्ट है, PM, CM और DM। तो DM को लोग जानना चाहता है, DM करता क्या है, DM होता क्या है, और DM का एक डिमिस्टिफाई। इस किताब में हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बॉस बन के काम करती है, मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है, बॉस बन के करती है, इसीलिए हम गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में नहीं बदल पाते। हमने
ब्यूरोक्रेसी में एक नया ट्रेंड कायम करने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ। क्या हम बॉस बन के काम नहीं करते हैं, हम बाप बन के काम करते हैं। आई डू बिहेव लाइक ए बाप, नॉट लाइक ए बॉस। इसी वजह से मेरा जनता से बहुत अच्छा कनेक्ट है, और जनता मेरे एक कहने पे पूरे जनपद की जनता, ये जितने काम इसमें हुआ है, मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने मैंने उनका ट्रस्ट जीता, बाप बना, और उनका ये विश्वास है कि ये डीएम, ये एडीएम, ये सीडीओ हमारे लिए जीता है, मेहनत करता है। और ट्रस्ट जीतने के बाद हमने पानी का अभियान चलाया तो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। चुनाव में किया तो 10.5% वोटिंग बढ़ गया। लोकसभा 2019 में यूपी में हाईएस्ट। मल न्यूट्रिशन में काम किया। पेड़, ये क्लाइमेटिक पेड़ लगाओ। अच्छा, हम सोचते थोड़ा सा देहाती तरीके से हैं क्या, पेड़ लगाओ अभियान लोग करते थे, तो हमने कहा ये प्रोग्राम ही गड़बड़ है, हमने उसका नाम बदल दिया पेड़ जियाओ अभियान। पेड़ लगा देते हो मर जाता है, क्या फायदा, तो पेड़ जियाओ अभियान चलाया मैंने, और वो बहुत पॉपुलर हुआ। इस तरह से इस किताब में, ये आर सेठ ने लिखी है, तो किताब लिखने की मेरी जर्नी ऐसे है। और अब अभी वो आथर और हीरो, अभी सुबह हीरो आए थे ना, ये क्या नाम था उनका, तुषार कपूर। हाँ, मैं हीरो थोड़ा कम जानता हूँ। तो मैंने उनकी जो फीलिंग देखी वही मेरी भी फीलिंग है। वो अपने आप को हीरो वाले पोज से आथर वाले पोज को बड़ा मान रहे थे। मतलब वो आथर बन के जो ग्लैमर उनको मिल रहा है, जो प्लेजर ड्राइव कर रहा है, दैट इज मोर देन द एज ए फिल्म एक्टर। यही बात मेरे साथ भी है। मैं आईएएस अफसर हूँ, लेकिन मुझे आईएएस अफसर में उतना मजा नहीं आ रहा, वो ग्लैमर नहीं दिखता जितना मैं आथर कहता हूँ। मैं तो डायनेमिक डीएम का आथर हूँ। मैं अक्सर आपसे ऑफिस में मिलता हूँ, लेकिन आज आप जितना उत्साहित दिख रहे हैं ना, वो मुझे ऑफिस में नहीं लगता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि साहित्य आपको कितनी एनर्जी दे रहा है। अजय सर, यहाँ सारे लोग पत्रकार हैं, सिविल सेवा में हैं, मैत्री जी हैं, आप पुलिस सेवा में हैं। पुलिस की एक बड़ी नेगेटिव, नकारात्मक इमेज है हम सबके दिमाग में कि पुलिस है तो माने सख्त है, लेकिन आप कहीं से सख्त तो दिख ही नहीं रहे हैं मुझे। तो क्या ये साहित्य का असर है, या कि आपने ऐसा बना लिया अपने आप को? बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका, और सबसे बड़ा धन्यवाद भाई हीरालाल जी का और उमाशंकर यादव जी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गुजरात के आप तमाम लोग सबके लिए, बात शुरू करने के लिए कहीं से बात शुरू करनी होती है कि सुकून है दिल के लिए, सुकून है दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, मिले नज़र उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूँ। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक पुलिस की एक विशेष इमेज जनता के दिमाग में है, और उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पुलिस खुद जिम्मेदार है। हम जैसा सड़क पर, गांव में, देहात में, गली में व्यवहार करते हैं, उसी से हमारी इमेज बनती है। ठीक है, ऐतिहासिक कारण भी हैं कि साहब अंग्रेज़ों की पुलिस थी तो अत्याचार करती थी, दमन करती थी, लेकिन ये गाना हम लोग कब तक गाते रहेंगे कि साहब अंग्रेज़ों की पुलिस अत्याचार करती थी तो 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी आज की पुलिस वैसी ही बनी रहेगी या अपने आप को नहीं सुधारेगी। तो इन तमाम चीज़ों को स्टूडेंट लाइफ से जब से हमने देखा कि संवेदनशीलता, जब पहले दिन मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो मेरे एक साथी थे बिहार के, डॉक्टर कमल किशोर, तो मसूरी की यात्रा में हम लोगों को यही बात हुई कि साहब आगे क्या करना है। आपने एग्ज़ाम दे के रगड़ते रगड़ते आप एक प्रतिष्ठित सेवा में घुस रहे हैं, कि सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य किसी भी अधिकारी के लिए, अभी डीएम साहब ने कहा, आपको एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उपलब्ध नहीं हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे हैं, उनकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं, तो आप कभी सफल अधिकारी नहीं हो सकते। एक गरीब आदमी भी आपके पास किसी वक्त आपका दरवाज़ा खटखटा ले, रात को 12 बजे भी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये मैं मानता हूँ कि रेहड़ी वाले भी मुझे रात के 1:30 बजे फ़ोन करके ये कर सकते हैं कि साहब आपका पुलिस वाला, मैं यहाँ अंडे बेच रहा हूँ और मुझसे 200 रुपये मांग रहा है। तो इसका मुझे जनता से जुड़ने का बहुत फ़ायदा हुआ, और यही किसी भी स्कीम की सफलता के लिए, जैसे चाहे पानी को, आपको पानी की योजनाओं को, पेड़ों की योजनाओं को अगर सफल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आपका जनता से कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। और ये बात उतनी ही पुलिस के लिए भी, और किसी भी, आप जिला आपूर्ति अधिकारी हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि राशन की दुकान पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको फिर जिला आपूर्ति अधिकारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप डीएम और एसएसपी, डीएम और एसपी दो बहुत महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं,
अगर एसपी ये नहीं जानता कि उसका चौकी इंचार्ज या थाने का इंचार्ज कितना ऑर्गेनाइज क्राइम करा रहा है और कितनी वसूली हो रही है, तो वो अच्छा प्रशासन कभी नहीं दे सकता। वो आईपीएस बन जाए, आईजी बन जाए, डीजी बन जाए, बकवास है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो सबसे पहले वो सूचना कहाँ से आएगी? वो आपके संवाद से आएगी, आपके लोगों के मिलने जुलने से आएगी। और संवेदनशीलता की जहाँ तक बात है, वो संवेदनशीलता हमें अपने परिवार से, माता पिता से, उससे मिलती है। लेकिन ये जो जहन में बिठा दिया जाता है कि आप बड़े अधिकारी हैं, अब आप बदल गए, अब आपको बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, तो वो जो फ्यूडल माइंडसेट हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि अब हम कुछ अलग हो गए, उससे लड़ाई करने की लगातार ज़रूरत है। जिस दिन आप नौकरी में आते हैं, जिस दिन लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद से लेकर जब तक रिटायर होते हैं, अगर आपने ये भ्रम पाल लिया कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं, आपको शासन करने के लिए लाया गया है, तो न तो आप अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, ना अच्छे समाज के सदस्य बन सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने इसी अहम के कारण अपने परिवारों को भी खो दिया, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, रिश्तेदार सारे कट जाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आप संवेदनशील रहें, लोगों से जुड़े रहें, लोगों की भावनाओं को समझें। मान लीजिए किसी बात को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, अगर आपको उनके साथ एम्पैथी नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हज़ारों की भीड़ को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों का अगर विश्वास है, उनके जैसे कोई भी डीएम एसपी आता है, आप लोग देखते होंगे, एक धारणा बन जाती है ये आदमी अच्छा है, जिसके बारे में ये नैरेटिव चल गया कि आदमी अच्छा है, तो लोग विश्वास करते हैं। वहाँ आंदोलन भी कम होते हैं, पथराव भी कम होते हैं, आगजनी भी कम होती है और दंगे भी नहीं होते। लेकिन जहाँ पता चल गया कि आदमी भ्रष्ट है, बेईमान है, अपनी जाति का समर्थन करेगा, अपने लोगों को बढ़ावा देगा, या इसके फेवरेट्स होंगे, या इसके पास जो गलत काम करने वालों को बढ़ावा देगा, वो आदमी कभी कामयाब अधिकारी नहीं हो सकता। और लिटरेचर उसका जीवन का बहुत अहम पार्ट है। लिटरेचर, जब आप मुंशी प्रेमचंद जब बचपन में पढ़ते हैं, कहानी ईदगाह पढ़ते हैं, ठाकुर का कुआं पढ़ते हैं, सदगति पढ़ते हैं, गोदान पढ़ते हैं, तो ये नई पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को अपने देश का साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा, मैं समझता हूँ उतना ही बेहतर इंसान बनेगा। अजय सर ने मित्रों एक बहुत अच्छी बात कही कि संवाद लोगों के बीच में जब आप जाएंगे तभी होगा। इस मंच पर भी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आए, तुरंत हमारे जो भी पैनल में यहाँ पर विशिष्ट लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग तरह से अपने आप को इवॉल्व किया इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए। तो हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं ज़रूर निकलती हैं, तो उनको अपने अंदर दबा के नहीं रखना है, आप निसंकोच पूछिए। और वैसे तो एक फ्लोर को ओपन करने का हमारी एक रस्म है, जिसको कि हम भी करेंगे, लेकिन अगर बीच में किसी के भी मन में कोई सवाल हो तो तत्काल पूछें। मैत्री जी, शब्दों की इंजीनियरिंग जब आप करती हैं, तो उसके पीछे क्या भाव होता है वो जो आप साहित्य में उसको ढालते हैं? आप जो भी रचना अपनी लिख रहे होते हैं, उसके पीछे एक तंत्र होता है जो आपके अनुभव उसमें जुड़े होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं कि टॉपिक को डिसाइड करते समय, जैसे आपका चीरहरण, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन एक उसका नाम जो है वो अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव है। तो क्या इसके लिए भी आप लोग कोई इंजीनियरिंग लगाते हैं क्या साहित्य में? अब इंजीनियरिंग कहिए या क्या कहिए, पर मेरा प्रोसेस अगर क्रिएटिव राइटिंग की बात की जाए, तो काफ़ी इट इज़ ओरिएंटेड विथ, इट कम्स नेचुरली। इसको ठीक है, क्या लिखेंगे वो सोचना, कैसे लिखेंगे वो सोचना पड़ता है, पर जैसे कोई थॉट अपने आप, जैसे बोलते हैं ना, एक मतलब इट्स एन इंस्पिरेशन दैट यू ड्रॉ, इट्स अ डिवाइन प्रोसेस इन इटसेल्फ। तो जैसे अभी कंटेम्प्रेरी चीरहरण जो बुक है उसकी बात की जाए, तो इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में बताती हूँ। 7-8 साल पहले हम लोग मैगज़ीन्स के लिए लिखते थे, तब मैं पढ़ती थी, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। उस समय हमने सोचा था इस बुक के बारे में। थॉट बहुत ही सिंपल था। मेरा फ्रेंड है गौरव जुल्का, जो इसमें मेरे को ऑथर भी हैं। हमारी एक बात चल रही थी, हम लोग मैगज़ीन के लिए लिखते थे, वी वेर काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर एंग्स्ट के जो विमेन इश्यूज़ हैं, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इतना सारा जेंडर इनइक्वालिटी है, तो इसके बारे में कुछ लिखा जाए। हमने सिर्फ ई बुक लिखने का सोचा था उस समय। उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से ये काइंड ऑफ बैक ट्रैक हो गया ये जो प्रोजेक्ट था। पर जो हमने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी वो कुछ पब्लिकेशन हाउसेस में सेंड करके रखी थी।
तो जो मेरे पब्लिशर्स हैं उन्होंने एक दे डिड वन वर्डेड आर्ट फंड, जिससे वो लोग नए ऑथर्स को एनकरेज करते हैं, उसमें उन्होंने इसको सिलेक्ट किया और 2018 में ये प्रोजेक्ट रिवाइव हुआ। तब मैं सर्विसेज में ऑलरेडी आ गई थी। अब वो प्रोजेक्ट रिवाइव होने के बाद जब मैंने पढ़ा तो ऑब्वियसली 3-4 साल पुरानी राइटिंग थी, एंड यू ग्रो एज अ पर्सन, यू ग्रो एज अ राइटर। तो मुझे लिख के ऐसा लगा, अरे ये तो मैं अपने नाम के साथ अब पब्लिश नहीं कर सकती। सो 80% ऑफ द थिंग्स दैट आर रिटन वो पूरा सब चेंज किया है। मोटिव वही था, जो हमारा पर्पस था एट द कोर वो नहीं बदला, पर यस उसमें फिर शब्दों की इंजीनियरिंग, थोड़ा ऐसा भी लगता है अब एटलीस्ट हम उस टाइम पे स्टूडेंट आप जब होते हैं तब आपके पर्सपेक्टिव अलग होती है। एक बार सेवा में आने के बाद आपको पता है आपके शब्दों की कुछ वैल्यू है, एटलीस्ट इवन विद दैट फॉर द गरिमा बनाए रखनी चाहिए उस जगह की। उसके हिसाब से भी काफ़ी सुधारा इसको और फिर पब्लिश किया। और बाकी जो मैं क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ, एक मेरे दादाजी हैं, वो कहते थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, जो इज़ अ फेमस राइटर। उनका कहना ये था कि जब वो कोई कविता लिखते, उनको किसी ने पूछा आप कविता कैसे लिखते हैं, क्या इसका मीनिंग कुछ, तो उन्होंने ये क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, उन्होंने बोला कि जब मैंने कविता लिखी थी उस समय सिर्फ भगवान और मैं जानते थे इसका मीनिंग क्या है, अब सिर्फ भगवान जानते हैं लिखने के बाद। तो ये बिल्कुल सही बात है। सर्टेन टाइम्स आपको जब वो इंस्पिरेशन आती है, आप कलम पर उतार देते हैं, कभी आप उसको रिन्यू थोड़े समय बाद फिर से देखें रिन्यूड पर्सपेक्टिव से, तो आप भी पजल हो जाते हैं कि अरे ये हमने क्या सोचा था और क्या लिखा है। सो बहुत ही गिविंग प्रोसेस है ये। सो इट इज़ सिमिलर फॉर मी एज वेल। अभी मैं भी आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर। बहुत बढ़िया। आदित्य जी, जिस तरह से मैं आपके बारे में जाना मैंने आपके प्रोफाइल को देखकर, और कि पहाड़ों से और पर्यावरण से आपका बड़ा करीब का नाता है। आप पर्यावरण को लेके बहुत ही संवेदनशील भी हैं। आपकी एक किताब जिसको फिक्शन के तौर पर आपने जिसको लिखा, हाई ऑन कोसल, ये जो टॉपिक, जैसे हम लोग जब स्टोरीज़ के लिए निकलते हैं, फील्ड में होते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक हमको मिलते चले जाते हैं। आप एक साहित्यकार के तौर पर जब आप उसको लिखने के लिए अपने दिमाग में एक गढ़ते हैं कि ये हमको लिखना है, तो टॉपिक डिसाइड करते समय आपका अपना जो प्रोफेशन है, जो आप काम कर रहे होते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसमें? आपने जो सवाल पूछा, आई थिंक इसका बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ तक मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में इस हाई ऑन कसोल किताब के बारे में कहूँ, तो आई थिंक प्रोफेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटलीस्ट मेरे केस में बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया, बिकॉज मैं शुरू किया था, मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर अपनी जो जर्नी जर्नलिज्म की शुरू की थी, हम अभी बात भी कर रहे थे, दिल्ली में। और उसके बाद जब हमने न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया, मुझे लगता है कि बहुत जगह देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंस्टांसेस होते हैं जो आपको बहुत मूव करते हैं। मतलब इनके प्रोफेशंस में, आई थिंक आईपीएस के या इवन एडमिनिस्ट्रेशंस में भी आपको बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे दिखते हैं जो आपको अंदर तक मूव करते हैं। और फिर आप बेशक अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो जो इंस्टांसेस हैं आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रहते हैं और वो बार बार आपके आते रहते हैं। इसी तरह से जो, जहाँ तक आपने इसका सवाल पूछा, बिकॉज मैं आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिल्स। ये हाई ऑन कसोल एक छोटा सा कस्बा है कुल्लू ज़िला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मैं बचपन में व्हेन आई वाज आई थिंक 8-10 years old, मेरे फादर वहीं पे, ही वाज एन इंजीनियर, मैं उनके साथ ट्रैवल करता था। वो वहाँ की सड़क की कंस्ट्रक्शंस में वहाँ से जाते थे, उनके साथ घूमने कभी जाते थे, और मैं वहाँ देखता था एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड, जो एक बच्चा होता है कहीं भी एरिया को देखता है। उसके बाद फिर हम बड़े होते गए, प्रोफेशंस के लिए मैं शिमला, दिल्ली, बाहर चले गए। फिर 15-20 साल बाद तुम वापस आते हो तो एक नॉस्टैल्जिया में आप कुछ जगह जाते हो, यू वांट टू रीविजिट मैनी प्लेसेस जो आप बचपन में गए होते। वहाँ पे जाके जो ड्रास्टिक चेंज था, वेदर इट्स वाज अबाउट एनवायरनमेंट, रहने का ढंग, पूरा का पूरा मुझे बहुत ही बदलाव लगा वहाँ पे। और मुझे सडनली ये लगा कि जो हमने एक लाइफ जी है बचपन में, जो हमारी जनरेशन्स है, मेरी एक डॉटर है, शी विल नेवर बी एबल टू रियलाइज़ कि उस टाइम में ये कितना अच्छा था और अब कितना ख़राब हो गया। यह एक लाइफ है, उसको कैसे प्रिजर्व करें, एक इशू ये था। दूसरा, जो मैंने अपने एज ए प्रोफेशनल
क्राइम के टाइम में मैं दिल्ली में था, एक दो बहुत ही इंस्टांसेस हुए थे, जैसे एक जसिका लाल मर्डर केस हुआ था, उसको मुझे कवर करने का मौका मिला। आई यूज़ टू वर्क विद दिल्ली टाइम्स उस टाइम में, तो मैं यंगस्टर्स से बहुत इंटरेक्ट किया। और एक चीज़ जो मुझे उस टाइम नज़र आई कि कसोल या कुल्लू में एक जगह है, मलाना विलेज है, विच इज़ फेमस फॉर वर्ल्ड क्लास हैश, ड्रग्स के लिए कैनबिस ग्रो होती है। उसको लेके लोगों में बहुत क्यूरोसिटी थी, और मुझे ये लगता था कि जो यंगस्टर्स हैं वो इम्प्रेशनेबल एज तो उनकी है ही, ड्रग्स की तरफ एक क्यूरोसिटी की वजह से वो उनका रुझान शुरू में होता है, और उसके बाद देयर इज ए स्टेज जब उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन इफ दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट। ये आई थिंक 2-3 चीज़ें थी जिन्हें मुझे बहुत अंदर तक मुझे लगता था कि मुझे कुछ इसके बारे में लिखना है। और फिर मेरे लाइफ में मैंने खुद कुछ ऐसे कैरेक्टर से मेरी इंटरेक्शन भी रही है, जो लोग इस इलीगल धंधे में इन्वॉल्व थे, मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है। और वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एज ए जर्नलिस्ट में न्यूज़पेपर में विदाउट प्रूफ नहीं लिख सकता था, बिकॉज यू नीड टू सब्सटेंशिएट सो मेनी थिंग्स व्हेन यू आर राइटिंग एज ए न्यूज़ रिपोर्ट। लेकिन मुझे लगता था वो इतनी चीज़ें बाहर आनी चाहिए, लोगों को उनका पता लगना चाहिए और उनके बारे में उनको जानना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ दिस आइडिया केम के बहुत सारी चीज़ें जो हैं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, उनको मैंने थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया है, ताकि वो एक स्टोरी के फॉर्म में आप बता सको, जहां आपको लगे कि कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो सकती है, कल को आप लीगल ट्रबल में ना हो, तो उसको आप फिक्शन की फॉर्म में लोगों तक कन्वे हो जाए, कहानी चली जाए। और आई थिंक ये एक ऐसा आइडिया था जो मुझे ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले से मैं सोच रहा था। फिर मुझे लगा लिखना चाहिए, बहुत कोशिश की, और वही जो एक प्रोफेशन में हमारे होता है, जैसे आपको अभी लगता था नहीं लिख सकते, फिर आप एक किसी तरह से अपने आप को तैयार करते हो लिखने के लिए, और फिर हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट बिकेम, और अभी भी ये इट्स इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन। लेकिन जैसे बीइंग अ रिपोर्टर हम लोगों के साथ एक बड़ी त्रासदी होती है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि पत्रकार मुकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, डिफेंस मुझे लगता है जितना ये जानते हैं पत्रकार के तौर पर, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ऐसी देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं जो हम रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हमें पता बहुत कुछ होता है कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी अपनी कुछ मर्यादा कह लीजिए या लक्ष्मण रेखा है एक, जिसे हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फिक्शन के नाम पर क्या ये सारी चीज़ें हमें ये आज़ादी है कि हम इसको किताब में या अपने साहित्य में इसको रिफ्लेक्ट कर सकें? आई थिंक यही वो जगह है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेशनल काम आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी भी है, और उनको आपको न्यूज़पेपर में तो आप फैक्ट्स रिपोर्ट करके रीडर को बता रहे हैं कि ये फैक्ट है, दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी सेड। बहुत सारी चीज़ें आप बिना कहे जाते हो। आई थिंक वो फिक्शन की एक ब्यूटी है, जो एज ए जर्नलिस्ट मेरी लिमिटेशन एक न्यूज़पेपर या इवन फॉर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हमेशा रही है। फिक्शन में आप उस चीज़ को बिना कहे कन्वे करना चाह रहे हो कि रीडर को कहानी समझ आ रही है, रीडर को ये समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज किसी ड्रग्स के इशू में कैसे होती है, रीडर्स को समझ आ रही है एक नेक्सस कैसे होता है पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का या इवन लोकल्स का। रीडर्स को समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ लोग कितने हेल्पलेस हैं, हर जगह ऑनेस्ट लोग भी हैं और करप्ट भी हैं, एक पूरी की पूरी चेन है और हम सब लोग इस सोसाइटी के पार्ट हैं। आई थिंक वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन करता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल क्लियरली बताने के बजाय आप उनको एक आई थिंक एक वेल करके, कवर करके मैसेज के रूप में कन्वे करते हो। आई थिंक वो आपके एक अनुभव के साथ आपको आता है। मुझे लगता है कहा जा सकता है थोड़ा सा उसमें आपके अनुभव का बहुत रोल रहता है। और इसका मतलब लिटरेचर एक मीडियम है जो बात हम नहीं कह सकते हैं, अनकही हमारी बातों को। अनकही बातें, आई थिंक वो लिटरेचर क्या बहुत बात है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। और खासकर हमारे जैसे लोगों के लिए जो एज ए जर्नलिस्ट एट मैनी प्लेसेस यू माइट फील सफोकेटेड कि आप वो चीज़ कहना चाह रहे हैं, आप नहीं लिख सकते उसको बिकॉज आपके एथिक्स हैं, आपको पढ़ाया ऐसे गया है, या इवन आज की तारीख में तो बहुत सारी कंपल्शंस हैं जो आई थिंक एक अलग टॉपिक है, उस पर एक अलग सेशन कर सकते हैं हम लोग। जी जी। तो आई थिंक फिक्शन इज ए गुड वे आउट टू कन्वे ऑल दोज थिंग्स in a refined way and in a way that you don't get into any trouble at the end of the day. मुझे लगता है इस तरह के जो सम्मेलन है इनकी सार्थकता इसी बात में, आज देखिए एक नया रास्ता निकल गया है। मुझे एक वे मिला इसका कि हम लोग लिख सकते हैं। एक छोटा सा अनुभव, एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसे ही हम बैठे हुए थे
और उनके मुंह से ये निकल गया, पायरेसी को लेके बात चल रही थी, और उन्होंने बताया कि तुमको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इस सरकार में जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे मोर देन 90% पायरेटेड वर्जन पड़ा हुआ है। और मेरे लिए अपने आप में इसको छुपा पाना बड़ा मुश्किल था कि ये तो मेरे लिए खबर थी कि जो सरकार जिस चीज़ को रोकने के लिए इतना कुछ जतन कर रही है, कानून बना रही है, उसके अपने पूरे सिस्टम में पायरेटेड सिस्टम चल रहा है। तो रास्ता भी उन्होंने मुझे बताया कि RTI डाल दो और वो स्टोरी आई फिर। खैर हीरालाल जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ये सब, आप बताते भी नहीं है पत्रकारों को कुछ, बहुत आपसे हम खोजने की कोशिश करते हैं, सर बता दीजिए, बस अपनी बात बता देंगे बस ना धीरे से। ये जो क्रिएटिव राइटिंग वाली बात है, मैं जब जब आपसे मिलता हूँ आप मुझे एक नए रूप में कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते हुए दिखते हैं। कल परसों मैं लखनऊ से जब मैं अहमदाबाद आ रहा था तो मैं हीरालाल जी के ऑफिस गया। वहाँ मैंने देखा कि जैसे कि आमतौर पर एक बड़े ऑफिसर के चैम्बर में, ऑफिस में, उसके अपने बैठने के लिए कुर्सी अलग होती है और जो आने वाले लोग होते हैं आगंतुक, उनके लिए अलग तरह की कुर्सी होती है। तो मैं जब इनके कमरे में घुसा तो देखा कि इनके बैठने की जो कुर्सी थी वो साइड में रखी हुई थी और जो आगंतुक वाली कुर्सियाँ थीं उनमें से एक कुर्सी इन्होंने अपने लिए रखी हुई थी। तो मुझे लगा कि ये औरों से हट के अपने आप को, जो इनकी एक क्वालिटी है, मैं पता नहीं क्यों इनको कभी भी एज एन IAS ऑफिसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ। ये मुझे लगता है कि हमारे गांव के हैं, हमारे ही जैसे हैं, हम लोग जैसे अपना घूमते रहते हैं उसी तरह। तो सर आपकी ये जो किताब, जैसे डायनेमिक DM, ये नाम भी अपने आप में बड़ा क्रिएटिव है, नाम ही बिक गया इतना, तो ये सब कैसे आता है दिमाग में? और आप काम, जैसे आपने पानी का काम किया तो वहाँ पेड़ पर काम किया, उसमें भी कुछ क्रिएटिव कर डाला। तो ये आपकी अपनी एक जिसको कहें कि व्यक्तित्व की खासियत है या गॉड गिफ्टेड है, या कि आप इसके लिए कुछ करते हैं? देखिए, मैं आपसे एक किस्सा शेयर करूंगा। लोग कहते हैं DM बहुत पावरफुल पोस्ट है क्या, और जब मैं DM बन के गया तो मैं कांपते हुए गया। रास्ते में जब मैं लखनऊ से उस ज़िले में ज्वाइन करने जा रहा था तो मैं कांपते हुए गया, एक बात। और मैं 1.5 साल कलेक्टर था उस ज़िले में और पॉपुलर कलेक्टर था, PM ने भी मेरी तारीफ की, लेकिन मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता था। जिसको कहते हैं बहुत पावरफुल, मैं अपने अंदर से मैं बड़ा कमज़ोर, मैं बहुत परेशान रहता था। क्यों? लोगों की समस्याएं दूर करनी है, DM को करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा था। लोगों को रोजी रोटी देनी है, मैं नहीं दे पा रहा था। जनता को जो देना चाहिए एज ए DM मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कैसे पावरफुल हूं? ये मेरा सोचने का एक तरीका है क्या, एक बात। दूसरी बात यह है 24/7 मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। पढ़ने का, अभी पढ़ाई की, मैंने BTech किया, फिर MTech किया, फिर NTPC में नौकरी किया, फिर MPA 1 साल, एक भारत सरकार की 1 साल MPA पढ़ने चला गया, 1 साल खुद झाड़ू बहारू सब, वहाँ कोई IAS OAS नहीं है क्या, USA में, यू आर एलोन। वहाँ 1 साल रहा, खुद रोटी बनाया ज़िंदगी में पहली बार, सब्जी बनाया, झाड़ू लगाया, प्रेस किया, एनीथिंग। उसके बाद लौट के आया, MPA किया, और आज भी मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी भूख नहीं मिट रही है, मैं इस समय डिलीट कर रहा हूँ और जब और पढ़ता रहूँगा। तो ये जो हम लोग बड़े बड़े अफसर होकर पढ़ना छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी बुरी बला है। तो 24/7 पढ़ना और 24/7। मैं एक घटना बताता हूँ। मैं पहले तो कोई डांट दिया, देखिए IAS OAS बनने में सेवा में घमंड आ जाता है, वो ऐसी चीज़ें ही है, ना चाहो तब भी नशा चढ़ जाता है। हाँ, ये मतलब, और उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे आपका IAS में सिलेक्शन हो गया, 3 करोड़ दहेज, 5 करोड़ दहेज, जिसके दरवाजे खटक नहीं सकते थे वो पैर छू रहा है, वो बिल्कुल हवाई जहाज बना देता है। UP और बिहार की बात बता रहे हैं? नहीं, ये ऑल ओवर है, मतलब मैं, ठीक है। हमारी पहले ही मैंने शादी की एक डॉक्टर लड़की से क्या, और उनके पिताजी नहीं थे। हमारी चॉइस थी कि मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो वो सोच ही अलग होती है। अगर मेरे पास कोई आता, मैं इतना बदल चुका हूँ कि अगर मेरे पास कोई आता, मेरे ऑफिस में आते हैं, मैं मेडिकल विभाग में हूँ, ये नेम आशा, ये मेरा ट्रांसफ़र कर दो, मैं जानता हूँ, तो मैं उनको चाय पिलाता हूँ, वो बताता हूँ ये आपका नहीं हो सकता, और किसी को पैसा वैसा मत देना, नहीं, मैं उसको सही बात मिलता हूँ। और अंदर से जब वो चली जाती है तो अंदर से बहुत कुंठा होती है कि ये जो विश्वास लेके मेरे पास आई थी कि मैं MD NHM के पास चल रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा, मैं तो कर पाया नहीं। तो आपके आदमी और इंसान वही है जो दर्द फील करे क्या। हम लोग
इतने ईगो में हैं, इतने घमंड में हैं कि जनता से दूरी बना के ही हम अपनी नौकरी को नौकरी समझते हैं, और ये बहुत बड़ी बुराई है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रह के ही अपना काम करते हैं। अभी उमा शंकर जी से मैं एक घटना बता रहा हूँ, और उमा शंकर की मैडम गई कुमुद जी के यहाँ। कुमुद जी ने मेरी बुराई कर दी उनसे कि हीरालाल साहब जो है, ये खुल के बता रहा हूँ क्या, इन्होंने मेरी बुराई करी कि हीरालाल साहब जब भी फोन मिलाते हैं तो कुछ बता देते हैं, ये करो तो आईएएस गिरी हमसे भी झाड़ते हैं। मतलब वो थोड़ा इन्होंने सोफिस्टिकेटेड भाषा में बताया, मैं उसको थोड़ा सा नमक मिर्चा लगा बता रहा हूँ। तो उन्होंने आकर के उमा शंकर जी से बताया, उमा शंकर जी ने मुझे फीडबैक दिया। हमने कहा देखो दोस्त, वो हमारी आदत हो गई है क्या, हमें हमारा चूंकि बात करने का ही स्टाइल है, यही हमारा ये कर दो वो कर दो ऐसे। अब वो हम अपने पिताजी से कहते हैं तो ऐसे कहते हैं, ये करके दो क्या, वो मेरी, हमने कहा हमारा इनाम तो ईगोलेस आदमी, टेंशन नहीं। फिर मैंने आधा घंटा बाद इनको फोन मिलाया और इनको एहसास नहीं होने दिया। मैंने खूब घुमाया फिराया, इनसे बात किया, इनसे बात किया, और इनके एक माहेश्वरी जी को लपेटा, पूरा सर्किल बना करके वो जो मुझे फीडबैक मिला था उसको मैंने रेक्टिफाई किया। क्या ये दर्द अब पैदा हो गया है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और हर एडमिनिस्ट्रेटर को ये दर्द पैदा करनी चाहिए, तभी हम जो चाहते हैं। अदरवाइज इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कहते हैं मैं उसी जमात का आदमी हूँ, वास्तव में जो पहले आईएएस अफसर थे उनसे ज़्यादा खतरनाक मुझे फीलिंग आती है, मैं देखता हूँ जब। बहुत अच्छी चीज़ नहीं, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही, और सही मायने में अगर देखा जाए तो मैं इसीलिए आपको लोक सेवक मानता हूँ। अजय जी, नॉर्थ ईस्ट आप इस समय वहाँ काम कर रहे हैं, मेरी एक जिज्ञासा है, 2014 के बाद से इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट बहुत बदल गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विकास जिसको कह रहे हैं वो हुआ है। आपका अपना अनुभव एक प्रशासक या पुलिस अफसर के तौर पर नहीं, क्योंकि आप वहाँ सरकार में बहुत, उत्तर भारत, उसके बारे में पूरा देश बहुत कम जानता है। और रही बात वहाँ के साहित्य की, वहाँ तो एक जैसे कहते हैं कि 4 किलोमीटर पे ही भाषा बदल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मैं काफ़ी लंबे समय रहा, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, सबकी अलग अलग गांव की बोलियां हैं। एक भाषा तो ऐसी है जिसको केवल 250 लोग समझते हैं, उस गांव के बाहर कोई इस भाषा को जानता ही नहीं है, अपनी लिपि नहीं है। तो साहित्य का विकास वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में मेरे हिसाब से बहुत कम है। और जहाँ तक हिंदी या इंग्लिश की बात है तो वो बिल्कुल एक अलग दुनिया है। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के तमाम हिस्सों के लोगों को जानें और समझें कि वो क्या सोचते हैं, और उनकी बड़ी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं। उनका जो ट्राइबल डांस है, ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल फोक लिटरेचर है, और वो जिस तरह से अपनी तमाम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, कितनी खुशी से। हर गांव में जैसे किसी को घर बनाना है तो अभी भी वहाँ पर 25 लोग मिलके 3 दिन के अंदर अंदर घर खड़ा कर देंगे, और कोई किसी से मजदूरी नहीं लेगा। जिसका घर बनाए वो सबको खाना खिला देगा, और अपनी जो लोकल शराब होती है जो भी बनाते हैं वो लोग, उसी में कितने खुश हैं। उनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। वहाँ का समाज, वहाँ के समाज में सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ है वो यह वहाँ बराबरी है। वहाँ मुख्यमंत्री गांव के बिल्कुल अनपढ़ आदमी के साथ बैठ के उसके साथ उसको अपमानित नहीं कर सकता, उसको पूरा सम्मान करेगा। मुख्यमंत्री के साथ सिपाही बैठ सकता है, वो बिल्कुल भाई भाई का, उनका बिरादरी का नाता है। जो खराबियां हैं, जो फ्यूडल, मैं बात कह रहा था, फ्यूडल माइंडसेट जिस पे तमाम सब लोग जिससे परेशान हैं, वो वहाँ नहीं है। उस समाज से, उस सोसाइटी से बहुत कुछ सीखने के लिए है बाकी देश के लिए। एक वहाँ पे जनजाति ऐसी थी जिसमें कि अगर आप चोरी करेंगे, पहली बार गांव के लोग आपको बिठा के समझाएंगे, दूसरी बार आपको कोई छोटी सज़ा देंगे, सन 60 तक अगर तीसरी बार आपने चोरी की है तो पहाड़ की चोटी से आपको धक्का मार दिया जाएगा। ये समाज की स्थिति थी। और जो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, हम हर साल एक नया लेजिस्लेशन बना देते हैं डाउरी रोकने के लिए, वहाँ कोई डाउरी नहीं है। डाउरी है तो भाई ठीक है, 4 भैंस दी हैं। और महिलाओं की जो बराबरी का स्तर है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए, मेघालय में देखिए, मणिपुर में देखिए, पूरा व्यापार, सारी दुकानें
लड़कियां और महिलाएं चला रही हैं वहाँ पर। अनुशासन के मामले में, ट्रैफिक का डिसिप्लिन है। तो पहले तो ये सोच बंद करना पड़ेगा कि साहब जो हम पुरानी फिल्मों में गाने देखा करते थे कि झूम 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 करते आ गए और पंख लगे हुए हैं और जो एक डिपिक्शन आपको दे दिया गया, तो उस समाज से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और वो समाज ये महसूस करना चाहता है बाकी हिंदुस्तान से कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, और हम जब दिल्ली आते हैं तो हमें कोई गलत नामों से चिंकी कहकर, चाइनीज़ कहकर, कोरोना के दौर में आपने देखा होगा, कोरोना के दौर में लोगों ने उन बेचारों पे हमला कर दिया। मूर्खता की कोई भी हद हो सकती है। तो उस इलाके के लोगों से ये उम्मीद करना कि नहीं साहब वहाँ मिलिटेंसी क्यों होती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरे देश भी उसमें योगदान करते हैं, लेकिन जो विश्वास है, उस विश्वास को जीतना सबसे बड़ी धरोहर है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं। मुझे रात के 9 बजे एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, मैं एसपी था, आईजी साहब आए हैं, ये साहब आए हुए हैं। मुझे एक फ़ोन आया कि साहब हम एसपी साहब से बात करेगा। तो मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं नागा सिपाही हूँ। तो मुझे लगा अभी मुझे धमकी देगा कि हम ऐसा उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घोर आतंकवाद था। यूनिफाइड कमांड, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, तमाम हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए। तो उस ऐसे माहौल में कोई फ़ोन आ गया। तो मैंने पूछा बताओ क्या बात है? कि नहीं एसपी बोल रहा है। मैंने हाँ एसपी बोल रहा हूँ। तो उसने कहा मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और आप बताइए। तो मेरे जो आईजी साहब आए थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि साहब एक आतंकवादी है लड़का, वो सरेंडर करना चाहता है। तो उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहा उस हरामजादे को बोलो कल दिन में 12 बजे आ जाएगा। उसने कहा कि मेरे लोग, मेरे साथी हैं, वो मुझे हंट कर रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनको छोड़ के भाग गया हूँ, वो जहाँ देखेंगे मुझे मार देंगे। अब मैं आईजी की बात मानूं या उस लड़के की बात सुनूं जो सरेंडर करना चाहता है, या क्या करना चाहिए मुझे? मैंने बहुत फैसला लिया। मैं उस पार्टी में नहीं गया, आर्मी और जो आईजी साहब के सम्मान में चल रही थी। मैंने दोबारा उससे बात की। उसके पास वेपन्स थे और एक भारत सरकार की पॉलिसी है कि अगर कोई आतंकवादी सरेंडर करे तो उसको आप रिहेबिलिटेट करिए, 2000 रुपये महीने दीजिए, उसको कोई ट्रेड सिखाइए, कहीं नौकरी लगाइए। मैं उसको लेने चला गया रात के अंधेरे में। मैंने कोई जगह थी कि जो उसने जगह बताई वहाँ नहीं गया। थोड़ी सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है, अपनी ज़िंदगी भी महत्वपूर्ण है। तो मैं उसको लेके आ गया। मैं उसको थाने में लेके गया कि भाई इसने सरेंडर कर दिया, इसको तुम रख लो। पूरे थाने ने हाथ खड़े कर दिया कि हम इसको नहीं रख सकते, हमारे थाने पर अटैक हो जाएगा। अब मैं उसको लेकर कहाँ जाऊँ? मैं उसको अपने घर ले आया, अपने घर में रखा। उसके बाद मैं पार्टी में गया। पार्टी ख़त्म हो गई तो रात को फिर डिस्कशन हुआ। बोले कि तुम कहाँ थे? ये डांटना वाटना जो होता है, जो हीरालाल जी ने कहा कि सीनियर भी, वरिष्ठ भी लोग वो डांटते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे था। उन्होंने कहा मैंने मना किया था, आपने क्यों सरेंडर कराया इसको? मैंने कहा वो लड़का कह रहा था, इतना विश्वास कर रहा है कि मैं एसपी से बात करेगा और मेरे साथी मुझे मार देंगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उसको लेके आ गया, अपने घर में रखा। उन्होंने कहा, किसी ने सजेस्ट किया कि साहब इसको आप जो है एनकाउंटर कर दीजिए, इसके पास वेपन भी हैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म है और आपको गैलेंट्री मेडल मिल जाएगा। मैंने कहा ये भारत की परंपरा नहीं है, शरणागत के लिए भारत ऐसा नहीं सोचता, और मैं उस मेडल को लेकर शायद ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा अपनी पूरी ज़िंदगी कि एक लड़का जिसने आत्मसमर्पण किया उसको मैंने गैलेंट्री मेडल के लिए उसका मर्डर कर दिया। उस बच्चे को मैंने अपने पास रखा, उससे बहुत सारी सूचनाएं भी मिली, आर्मी ने उसके आधार पर ऑपरेशंस भी किए, और फाइनली उन्होंने कहा कि इस पर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में ठोंक दो। मैंने कहा सरेंडर पॉलिसी में जाएगा। अगर सरेंडर पॉलिसी भारत सरकार की है, इसके साथ और कुछ नहीं होगा। सारे लोगों ने मेरी बात मानी, मुख्यमंत्री तक ने बात मानी, और उस लड़के को बहुत दूर ले जाके, इतने रिमोट इलाके में उसको नौकरी मिल गई। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद वो लड़का और उसका परिवार और तमाम जो आतंकवाद में शामिल लोग हैं उसका उदाहरण जरूर देते होंगे। तो ये संवेदनशीलता प्रशासन में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं शायद अब टाइम भी ख़त्म हो रहा होगा, मैं ये समझता हूँ अगर किसी पुलिस वाले के बारे में अगर कोई आदमी ये कह दे कि आप पुलिस वाले नहीं लगते, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसके लिए नहीं हो सकता। तो यही आधार होना चाहिए हमारे काम करने के तरीके का। और अगर हीरालाल जी जैसे संवेदनशील अधिकारी हों पुलिस में, मेरे जैसे, मैं अपने इसको घमंड में नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह का काम करने वाले कि समाज से जुड़ के लोगों को कैसे सुधारा जा सकता है, अच्छा काम किया जा सकता है, तो उससे अब साहित्य से इसको कैसे लिंक करें। अभी जितने भी लोग मिलते हैं सब कहते हैं कि साहब क्राइम की स्टोरीज दीजिए क्योंकि क्राइम बिक रहा है। मेरा ये मानना है कि जो किसी का पर्सनल आघात है, किसी के साथ दुर्घटना हुई है, अभी तक मन ये नहीं बन पाता कि इसको बेचा जाए
तमाम कहानियाँ। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की थी, उसने एक अपने छोटे भाई के साथ मिलकर एक छोटे बच्चे को, अपने मकान मालिक के बच्चे को किडनैप कर लिया। 4 साल के बच्चे को किडनैप करके दोनों भाई बहन ले जाके कहीं रखा है, हस्बैंड वाइफ बन के कि साहब हम किराए पर रहेंगे। अब उस कहानी को मीडिया में दिखाकर, उसको OTT प्लेटफॉर्म पे ले जाकर, ग्रूसम मर्डर स्टोरीज़ हैं, रेप स्टोरीज़ हैं, अभी तक वो इतनी हिम्मत नहीं आई है कि उसको कमर्शलाइज़ किया जाए। हाँ, अच्छे उपन्यास में मैंने एक उपन्यास अभी लिखा है, द सन ऑफ गंगा, भीष्म पितामह के जीवन पर आधारित है। और मैं मानता हूँ कि डिस्टॉर्शन माइथोलॉजी के साथ भी नहीं करना चाहिए। एक उपन्यास बड़ा इनका किसी का लोकप्रिय हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि सीता जी ने हिरन मारने के लिए इसलिए कहा कि उनको हिरन का मीट बहुत पसंद था। मैं किताब का नाम नहीं लेना चाहता, अगर आपने पढ़ी होगी सन ऑफ इक्ष्वाकु, कौन सी किताब है। तो इस तरह का डिस्टॉर्शन नहीं करना चाहिए। आप अपनी कल्पना को इस्तेमाल करिए, और बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी भावनाएं। आप कमर्शलाइज भी कर सकते हैं चीज़ों को, और अपनी कंसियंस पे भी काम कर सकते हैं। थैंक यू। तो मित्रों, देखा, एक ऐसी कहानी, ऐसी बात जो शायद किताबों में ना आ पाती, इस मंच के माध्यम से आई, और इसके लिए हम सबको AILF का धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल, एक सवाल मैक्सिमम, क्योंकि समय हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है, समय की मर्यादा का हमें पालन करना होगा। अगर किसी के मन में कोई भी ऐसा सवाल हो जो हमारे इन चारों गणमान्य व्यक्तियों से पूछना चाहे, तो वो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सबने संतुष्ट कर दिया सबको। देखिए, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, आप नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूँ। आप क्या बात है? आप लोग गूगल में जाइए, डायनेमिक DM डालिए, आपको मिलेगा, पढ़िए और मेरे खिलाफ लिखिए। क्या इनकी एक इच्छा है ये। I have a question. This question is directed at Aditya as well as IPS officer Chaudhary. As I am also a journalist, so I know what Aditya said, that while reporting news, we have limitations. Newspapers, policy, editors' favorites, and political environment, the newspaper house, relationship with the ruling party, and all that. So whatever compulsions we have to follow while reporting, they can be ignored while writing fiction. Huh? Then while writing fiction, now Mr. Chaudhary says, while writing fiction and fictionalizing real stories, we also have to take care of other people's sentiments, which has become very dangerous now. Even before, yes, I'm coming to the question. Now my fundamental question is, the author is sandwiched or caught between the devil and the Dead Sea. While writing for news, he's constrained, and while becoming or fictionalizing anything, he's constrained by the sentiments of the people and mythology and all this and that. So my question is simple. In Hindi, it will be the author, jaye to jaye kahan. नहीं, आई थिंक मैंने उसका एक वही देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब जो एक वो हाफ ट्रूथ या हाफ लाइज की बात आती है कि हम कुछ कहानियों को, उसमें हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हम नहीं लिख सकते, तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके लिख देते हैं। मतलब बात जानी चाहिए, सबसे बड़ी ज़रूरी है, इट शुड नॉट गो अंडर द रैप। अब जैसे इन्होंने एक इंसिडेंट दिखाया, वो काफ़ी हार्ट टचिंग था, जिसके बारे में बताया भी, बट आई थिंक उसको मैं अगर उसको लिखना चाहता तो मैं न्यूज़पेपर में उसको नहीं लिख सकता, बट इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन हम कहीं ना कहीं उसको ये कन्वे ज़रूर कर सकते हैं, ताकि देयर मे बी ए सम वे आउट के ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो। मुझे नहीं लगता हम कभी रोक सकते हैं समाज में। आई थिंक गुड एंड इविल आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ब्लैक एंड वाइट चलता है, बट कहीं ना कहीं अगर उसको किसी तरह से वो किसी के सामने आए, इवन आज ये इट वाज वेरी रिवीलिंग जो इन्होंने बताया, वो एनकाउंटर के बारे में सरेंडर करना चाहता था, बट आज इन्होंने ये कन्वे किया है, तो आई थिंक एज ए जर्नलिस्ट अगर मुझे कल को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई सरेंडर करना चाह रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट इन टच विद सम ऑफिसर्स, तो मेरा पहला एफर्ट्स होंगे एज एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट कि ऐसी सिचुएशन को मैं किसी तरह से रोक पाऊंगा, या आई विल बी एंटिसिपेटिंग कि ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है,
तो उसको रोकने में अगर मैं कुछ कर सकूं तो आई थिंक दैट विल बी ए, इफ नॉट ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट, दैट विल बी ए स्टेप टुवर्ड्स दैट मेकिंग दैट अटेम्प्ट, एंड दैट इज मोर देन इनफ आई थिंक. सो थैंक यू सो मच सर, आप सबका बहुत बहुत आभार इस शानदार चर्चा के लिए. अगर उमाशंकर जी कुछ दो शब्द कहना चाहें. थैंक यू सो मच. द पैनल वाज सो इन्फॉर्मेटिव कि हम इनको सुनते ही रहें. इतनी बड़ी कहानियाँ चौधरी साहब ने सुनाई, हीरालाल साहब की कहानियाँ हैं, आदित्य कांत जी की ऐसी कहानियाँ हैं जो हिमाचल की इनकी बुक है जिसमें इन्होंने कैसे लोग गायब हो जाते हैं, कसोल की. मैत्री जी की बुक है जो इन्होंने लिखी है. हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये लिटरेचर फेस्टिवल हम सब आप लोगों को हम फिर यही बात रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि 40 मिनट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो सकती. हमको फिजिकल इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, इससे बहुत कुछ सीखना है. कहना कम है, समझना ज़्यादा है, और उसको समझने की कोशिश करना है. बस एक शब्द से भी आपको सारी कहानियाँ समझ में आ जाएंगी, व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा. इस तरह से हमें इस कार्यक्रम को चला पाएंगे. समय की मर्यादा रहती है. हम आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे रोकना पड़ रहा है बीच बीच में, क्योंकि नहीं रोकूंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा. थैंक यू सो मच. Thank you all. May I please request Umashankar sir to give away the mementos to the speakers. सी ये किताब है हाई ऑन कसोल. ये दो तीन बड़े बड़े इश्यूज को टच करती है. वन इज़ अबाउट मिस्टीरियस डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेनर्स जो कि वहाँ से कुल्लू वैली में होती है, उसको करती है. और कैसे जो ड्रग्स के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. सिंथेटिक ड्रग्स इज़ ए बिग इशू जो सिर्फ वहीं हिमाचल में नहीं, पंजाब और इवन गुजरात में भी बहुत है. उनको भी टच करती है और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं. दिस गिव्स ए पॉजिटिव मैसेज कि कैसे हम आने वाले टाइम में इट्स गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज एंड एवरीबॉडी हैज़ टू फाइट अगेंस्ट इट. थैंक यू सो मच. शो ऑल द वेरी बेस्ट. हाँ जी सर. कंटेम्प्रेरी चीर हरण अमेज़ॉन और बिकम शेक्सपियर पर अवेलेबल है. ये एक एंथोलॉजी है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, एपिग्राम्स, डायरी एंट्रीज जो कि विमेन इश्यूज़ और हाउ विमेन थ्राइव इवन अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स उसके बारे में है. सो जैसे कहा जाता है दिस बुक हैज़ बिगन इन एंग्स्ट बट एंड्स ऑन अ होपफुल नोट. सो आई होप एवरीबॉडी रीड्स एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम द रीडर्स. थैंक यू सो मच. विश ऑल द वेरी बेस्ट. और इनके जो बुक का टाइटल है कंटेम्प्रेरी चीर हरण, वो हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर है. और चीर हरण शब्द से हम लोग वाकिफ़ हैं. अच्छी बुक है, सबको पढ़ना चाहिए. गुजराती में